Good morning students, welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 4 of climate, and today's topic is the hot weather season. In the previous video I explained you about the seasons, and the first season is cold weather season. I discussed cold weather season in the previous video, but now I am discussing the hot weather season. This is also known as summer season. Now, what are the main features of summer season? Why exactly the summers are there, and in which part of the country, and what are the features of this summer season? Now let's start to read it. Due to the appropriate northwestern movement of the sun, the global heat belt shift northward. वो क्या कह रहा है? ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northward. As such, from March to May, it is hot weather season in our country, India. बच्चे देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे. इस चैप्टर में मैंने बहुत बार ये पॉइंट डिस्कस किया है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इट इज़ इक्वेटर 0 degree. And I told you that there is the movement of sun between 3.5 degree south to 23.5 degree north. It is Tropic of Cancer, and this is Tropic of Capricorn. इनके बीच में सन मूव करता रहता है. ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है. जब इंडिया में, it means in the northern part of the country, when we have the summer season, when the sun is moving upwards towards Tropic of Cancer, and when we are facing winter season here, it means sun is going downward towards the Tropic of Capricorn. 21st June, sun rays are direct over the Tropic of Cancer, so this area get maximum heat at that time, and here we are experience summer season. यही बात उसने यहाँ पर रिपीट बोली है, that that is northward movement of the sun, the global heat belt shift northward. ग्लोबल हीट बेल्ट कहाँ शिफ्ट हो रही है? ये हीट बेल्ट्स हैं एग्जैक्टली बच्चे. अगर आपको याद हो तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ी हुई हैं. ये हीट बेल्ट है. ये टेम्परेट जोन है, फिर ऊपर ट्रॉपिकल जोन है, और फिर हेयर नहीं, दिस इज़ ट्रॉपिकल, दिस वन टेम्परेट, एंड हेयर इट इज़ आर्कटिक सर्कल. ठीक है. तो अब ये जो हीट बेल्ट जो कि इक्वेटर के पास होती है, वो समर सीजन में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है. ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन की मूवमेंट के साथ, विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, एंड द ग्लोबल बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, और ग्लोबल बेल्ट भी नॉर्थवर्ड जा रही है. अब सन यहाँ डायरेक्ट है, तो नेचुरल है ये जो एरिया है दैट गॉट्स द फीलिंग हॉट वेदर सीजन, इसलिए इस एरिया में हॉट वेदर सीजन है. ठीक है. नाउ कम ऑन दिस. The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording to taken during March to May. और वो कहता है वो जो शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई देती है जब हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं मार्च से मई के बीच का. एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर हम हाईएस्ट मार्च में टेम्परेचर की बात करते हैं तो इट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन द दक्कन प्लेट्यू में. अप्रैल आते आते हाईएस्ट टेम्परेचर गुजरात, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और मई में इट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या हुआ है? साफ दिख रहा है कि जो सन की मूवमेंट है वो अपवर्ड जाती जा रही है, और हीट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. 21st March, sun is parallel on equator, and then he start moving towards north, and 21st जून तक वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है. 21st जून के बाद वो नीचे डाउन साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है,
और कब तक मूव करता रहता है? टिल 22 ऑफ दिसंबर, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ सन है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। जब सन डाउन है तो ऊपर विंटर है, और जब सन ऊपर है तो ऊपर समर है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो हमारे पास मई में जो टेम्परेचर है दैट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। In peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. ये लाइन मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि moderating influence है because of the coastal region. Okay, now come on the next. The summer months experience rising temperature and falling air pressure. Temperature क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. जैसे जैसे एयर गर्म होती जाएगी, लैंड गर्म होती जाएगी, तो क्या होगा? What happened? As the temperature of the land become increasing, the pressure of the air is also decreasing. It is reciprocal. Temperature is increasing, pressure is decreasing. When temperature is decreasing, pressure is increasing. Why? I told you that the cool air having the dense pressure as compared to hot air having the lighter pressure and having low pressure. dense air pressure, जब हवा dense होगी तो natural है वो बाहर ज़्यादा डालेगी, और जब हवा dense नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो बाहर कम डालेगी, प्रेशर कम डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो फॉलिंग हो रहा है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई एंड elongated low pressure area develops. मई में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ओवर द नॉर्दर्न इंडिया, ओवर द थार डेजर्ट, ठीक है। विच पार्ट? हेयर इन दिस पोर्शन, इन दिस पोर्शन इन द मंथ ऑफ मई वी हैव लो प्रेशर एरिया। ये सारा का सारा हमारा लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना and Chota Nagpur plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. और यहाँ पर क्या होता है? अब इस ट्रफ के तरफ सर्कुलेटिंग ऑफ एयर सर्कुलेटर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द, अब ये तो था आपके पास कि हॉट वेदर सीजन में यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। किस किस एरिया में लो प्रेशर होता है? दैट इज नाउ फीचर्स। हमारे जो हॉट वेदर सीजन है उसमें फीचर क्या है? द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। लू इज़ वेरी कॉमन विंड दैट इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द समर सीजन। बच्चे आपने नॉर्मली सुना होता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि आजकल लू चल रही है, लू में बाहर नहीं निकलना, लू लग जाएगी। ये बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं इन द मंथ ऑफ समर सीजन्स, इन द मंथ ऑफ मई, और वी कैन से ड्यूरिंग समर सीज़न। तो लू को लेकर हम लोग कहते हैं कि पानी ठंडा पीना चाहिए और अपने आप को कूल रखना चाहिए कि लू ना लगे, तो हमें मैक्सिमम वाटर जो है वो इनहेल करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि लू जो है वो वेदर सीजन का एक कॉमन फीचर है। एंड व्हाट इज़ लू? लू इज़ हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आई एम रिपीटिंग अगेन, what is loo? loo क्या है? loo, this is the definition of loo. It is a hot dry wind blowing during summer season, during summer season in the northern part of the northwestern part of the country, northwestern part of the country, कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लू चलती है, ठीक है। लू हम सब जानते हैं, लू के बारे में हम नॉर्मली आम भाषा में डेली रूटीन में ड्यूरिंग द समर्स हम बात करते हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। ये भी बड़ा एक कॉमन फीचर है। वैसे तो ड्यूरिंग द डे चलती है, पर जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन हमें शाम को 8-9 बजे तक भी गर्म हवा फील करनी पड़ती है, 7-8 बजे तक,
तो वो कहते हैं लेट इवनिंग आवर्स में भी समटाइम लू चल रही होती है. डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फैटल. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई. वो कहता है डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दिस विंड्स, अगर हम डायरेक्ट एक्सपोज करें, डायरेक्ट लें इन विंड को, किस विंड को, लू को, तो इवन प्रूव टू बी फैटल, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ और बता रहा है वो क्या है कि डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नॉर्दर्न इंडिया. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन. डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं. वी कैन सी इन द मंथ ऑफ मे आंधियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं. ठीक है. अब वो भी एक कॉमन फीचर है इसका, समर्स का. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. ठीक है. बट ये जो डस्ट स्टॉर्म है, कई बार क्या होता है कि लोकल लेवल पर ये लिटिल बिट रेनफॉल ले आते हैं. दिस रेनफॉल इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एनीथिंग एल्स. सम टाइम जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर जब आंधी तूफान चल जाता है तो नॉर्मली थोड़ा सा क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर्स की वजह से, और लिटिल बिट जस्ट अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो बूंदाबांदी हो जाती है. ठीक है. और फॉर द टाइम बीइंग वेदर जो है वो थोड़ा कूल हो जाता है. टाइम बीइंग मीन्स कि हाँ, अगर दिन में है तो दिन ठंडा हो गया, अगर रात में है तो रात ठंडी होगी. दैट इज इट. ओके. सो डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नॉर्थ इंडिया, and these storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. और इन डस्ट स्टॉर्म से यहाँ तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है या फिर ठंडी हवा चलने लग जाती है, जो कि थोड़ा सा रिलीफ हमारे लिए लेकर आते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म. लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स होते हैं. मैंने बोला ना कि लोकल लेवल पर ऐसा होता है. इट इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस और एनी टाइप ऑफ मानसून और प्री मानसून शॉर. ऐसा कुछ नहीं है ये. ठीक है. नाउ दीज थंडर स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल. आई एम रिपीटिंग इट. दिस ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, torrential downpours often accompanied by hail. मैंने बताया कि इसमें winds, हवा तेज़ चलने लग जाती है. torrential downpours, कई बार थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, और कई बार hail means ओले भी पड़ जाते हैं. इन वेस्ट बंगाल में these local thunderstorms are known as काल बैसाखी. हम इनको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं इन द वेस्ट बंगाल. सो हेयर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ काल बैसाखी ऑल्सो. यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके पास आई लू की, और दूसरी डेफिनेशन आएगी आपके पास काल बैसाखी. दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन. अब काल बैसाखी क्या है? इट इज localized thunderstorms that brought लेकर आते हैं? that brought violent winds, तेज हवाएं, sometime downpours यानी लिटिल बिट बौछार या बूंदाबांदी, और hail. This helps to brought, ये हमारी क्या हेल्प करती हैं? to brought temporary relief दिलाती हैं from the heat. गर्मी से एक टेम्परेरी रिलीफ जो है वो हमें ये दिलाती हैं, ये थंडर स्टॉर्म दिलाते हैं. एंड दिस इज़ नॉन एज काल बैसाखी इन बंगाल. ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी है, दैट दिस इज़ नोन एज काल बैसाखी इन बंगाल. ओके. सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर काल बैसाखी. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. हियर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून showers आर कॉमन.
अगर हम समर सीज़न में बात करें तो यहाँ पर प्री मानसून शावर्स भी आ जाते हैं. कहाँ पर? कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्री मानसून शावर्स आते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द स्टार्टिंग ऑफ मई इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स और आइलैंड ग्रुप्स और द साउदर्न टिप ऑफ द कंट्री के साउदर्न टिप में प्री मानसून शावर्स आ जाते हैं एट द एंड ऑफ अप्रैल और इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई, स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. और ये जो प्री मानसून शावर्स हैं ये केरला और कर्नाटका में जल्दी से आम को पका देती हैं. अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड हेंस इट वाज रेफर्ड टू एज मैंगो शावर्स. इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं मैंगो शावर्स. वाई? बिकॉज दीज प्री मानसून शावर्स helps to the early ripening of mangoes in Kerala and Karnataka. तो यहाँ पर आपके पास थर्ड डेफिनेशन जो बनेगी, this is about the mango showers. This is about mango showers. बच्चे ये definitions you have to be write in your notebook. Okay? So mango showers. What is mango showers? It is the प्री मानसून विंड्स. ये क्या है? प्री मानसून विंड्स दैट कहाँ आ रही हैं? दैट ब्राउट ऑन द, कहाँ ब्राउट हो रही हैं? एट केरला एंड कर्नाटका एंड हेल्प, किसमें हेल्प कर रही हैं? help in the early ripening of mangoes. मैंगोज की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करती हैं. सो इट इज नोन एज, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नोन एज मैंगो शावर्स. सो हेयर फ्रॉम द हॉट वेदर सीजन you have the three main definitions. One is Loo, second is Kal Baisakhi and third is mango showers. Okay, so all this is about your hot weather season. I am repeating again. Now I am reading the main features of hot weather season. एक बार मैं मेन फीचर्स हॉट वेदर सीजन के दोबारा से पढ़ रही हूँ. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. नंबर 1, hot weather season started from the March to May. Northern part of the country experienced hot weather season. मार्च से मई में नॉर्दर्न पार्ट में क्या आ रहा है? हॉट वेदर सीजन आ रहा है. ओके. हाईएस्ट टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस इन मार्च. मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस है, बट इन मई इट इज़ रीच अप टू 45 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर जो है मई में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट, summer season experience rising temperature and falling of air pressure. Okay, next is Loo is the local wind start blowing in the northern part of the country. Local wind है Loo. It is a hot dry wind. It is a, you can write here, it is hot dry wind. Okay, next, dust storms are very common during the month of May. Dust storms are very common. This is the feature of hot weather season. Seasons also have localized thunderstorms. Season में क्या है? Localized thunderstorms भी हैं. थोड़े बहुत जो तूफ़ान, आंधी तूफ़ान भी चलते हैं लोकल लेवल पर. इन वेस्टर्न बंगाल दिस स्टॉर्म्स आर कॉल्ड काल बैसाखी. और वेस्ट बंगाल में हम इन स्टॉर्म्स को किस नाम से जानते हैं? by the name of Kal Baisakhi. Okay, so this all about your hot weather season. Here you have to be learn these features of hot weather season and also these definitions. One is mango shower, second is Loo, and third is Kal Baisakhi. Okay, that's it for today. The next season we are discuss in the next video. Till then, goodbye, thank you and have a nice day.